السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں حالیہ دنوں میں ہونے والی غیر موسمی بارش نے کسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ بارش سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور اب تازہ بارش نے کٹائی کے بعد خشک ہونے کے لیے رکھی گئی دھان کی بوریوں کو بھی تر کر دیا۔ گزشتہ 10 دنوں سے دھان کی کٹائی جاری اور کسان اپنی پیداوار کو خریداری مراکز تک پہنچا رہے، تاہم ان مراکز میں مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث کسان سخت پریشانی کا سامنا کر رہے۔ گیلی دھان میں نمی کی شرح زیادہ ہونے کے باعث مرکز کے منتظمین اسے تولنے سے انکار کر رہے۔ وہ صاف طور پر کہہ رہے کہ صرف مکمل خشک دھان ہی خریدی جائے گی۔ مسلسل بارش کے باعث دھان میں نمی برقرار رہنے سے کسان مجبوراً اپنی پیداوار نجی تاجروں کو کم داموں میں فروخت کر رہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ قیمت کم ہے لیکن کم از کم تاخیر یا وزن کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس سیزن میں ریاست میں 159 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی پیداوار متوقع ہے، جبکہ حکومت نے 80 لاکھ میٹرک ٹن خریداری کا ہدف مقرر کیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں سرکاری خریداری مراکز پر سست روی کے باعث کسانوں کی توجہ نجی خریداروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس سے حکومت کے لیے اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنا مشکل ہوتا جا رہا۔ اداکار و سابق مرکزی وزیر چرنجیوی نے کئی ویب سائٹس کے خلاف شکایت درج کرائی، جن پر ان کے نام اور تصویر کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے تیار غیر اخلاقی اور فحش ویڈیوز بنانے کا الزام ہے۔ اس شکایت کی بنیاد پر حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اپنی شکایت میں اداکار نے کہا ہے کہ حال ہی میں انہیں معلوم ہوا ہے کہ ویب سائٹ نے ان کے نام اور شکل اور تصویر کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی فحش ویڈیو پھیلائی، جن میں انہیں بے بنیاد طور پر غیر اخلاقی حرکات میں ملوث دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ویڈیو سے ان کی ساکھ کو سنگین اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا اور یہ مواد جان بوجھ کر ان کو فحش انداز میں پیش کرنے، عوامی تاثر کو بگاڑنے اور دہائیوں کی نیک نامی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا۔ ضلع کلکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ سنگاریڈی ضلع میں شراب کی دکانوں کی الاٹمنٹ نئی ایکسائز پالیسی کے دفعات کے بعد مکمل طور پر شفاف طریقے سے کی گئی۔ ضلع میں شراب کی دکان کے لائسنسوں کی الاٹمنٹ کا عمل جو 2025-27 تک جاری رہے گا۔ JSR میں منعقدہ سنگاریڈی ٹاؤن میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا، ضلع میں شراب کی 101 دکانوں کے الاٹمنٹ کے لیے کل 4432 درخواستیں موصول ہوئی۔ درخواست دہندگان کو 100 شراب کی دکانوں میں سے ہر ایک کے لیے دکان کے لحاظ سے مدعو کیا گیا تھا اور ان کی موجودگی میں 1 لاکھ کی قرعہ اندازی کی گئی۔ 100 دکانوں کی الاٹمنٹ مکمل ہو چکی ہے۔ کلکٹر نے کہا کہ تصویر اور ویڈیو فلم بندی کے ساتھ پورا پروگرام آسانی سے چلا اور دکان نمبر 24 کے حوالے سے موصول ہونے والی درخواستوں کی کم تعداد کے پیش نظر کلکٹر نے انکشاف کیا کہ محکمہ ایکسائز کے حکم کے مطابق دوبارہ نوٹیفیکیشن دیا جائے گا۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا ہے کہ نومولود بچوں کی صحت و حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے عہدیداران مؤثر اور جامع اقدامات کریں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں منعقدہ نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت سے متعلق تربیتی پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شمع روشن کرتے ہوئے تربیتی پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ ضلع میں نومولود بچوں کی اموات کی شرح کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے ڈاکٹروں اور نرسنگ عملے کو زیادہ لگن اور ذمہ داری کے ساتھ خدمات انجام دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے قبائلی اور پسماندہ علاقوں میں جغرافیائی و سماجی چیلنجز کے باوجود محکمہ صحت کے عملے کی انتھک محنت سے ماں، بچے اور کم عمر بچوں کی اموات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ شراب کی دکانوں کی لکی ڈرا کلکٹر پی پرونیا کی نگرانی میں منعقد کی گئی۔ سنگاریڈی ضلع میں شراب کی دکانوں کی الاٹمنٹ کے ایک حصے کے طور پر دکان مختص کرنے کا لکی ڈرا طریقہ کار جاری۔ ضلع کلکٹر پی پرونیا کی نگرانی میں یہ پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں ایکسائز سپرنٹنڈنٹ، افسران اور ٹینڈرز نے شرکت کی۔ محکمہ ایکسائز نے لکی قرعہ اندازی کے ذریعے وسیع انتظامات کیے۔
Shop number 4, token number 38, 3838. सक्सेसफुल अपने ट्रेन एप्लीकेशन मिला। चैट जीपीटी की तख्लीक कार कंपनी ओपन एआई के बॉस सैम ऑल्टमैन अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे जिसका नाम ब्रेन है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई अब मर्ज लैब्स पर काम कर रही जो ब्रेन कंप्यूटराइज और इंटरफेस बीसीआई होगा। इस सिस्टम का काम ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स और आवाज को हासिल करना है। काबिल गौर बात यह है कि उसे सर्जरी की जरूरत नहीं। सैम ऑल्टमैन के आने वाले इस प्रोजेक्ट का बराह रास्त मुकाबला दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के साथ होगा। न्यूरालिंक भी इंसानी दिमाग में बीसीआई चिप को इम्प्लांट करती है। इस सिलसिले में वो पहले ही इसका एक कामयाब तजुर्बा कर चुकी है जिसकी मदद से सार्फिन दिमागी लहरों और आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर का कर्सर चला रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जस्टिस बीआर गोई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश पेश कर दी। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम को वजारत कानून भेजा। उन्होंने इस सिलसिले में रस्मी खत तब लिखा जब गुज़िश्ता दिनों वजारत कानून ने जस्टिस गोई से उनके जानशीन का नाम पेश करने की अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सबसे सीनियर जज हैं और सीनियर टी में पहले मुकाम पर हैं। जस्टिस गोई के सुबुकदोश होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस बीआर गोई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत हिंदुस्तान के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की मुद्दत कार 14 महीने पर मुश्तमिल होगी क्योंकि वो 9 फरवरी 2027 को सुबुकदोश होंगे। जस्टिस गोई ने मई 2025 में हिंदुस्तान के 52वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के 3 रोजा दौरे पर रवाना। ओहदा संभालने के बाद ये उनके आबाई रियासत का पहला दौरा। नायब सदर के सेक्रेटरी ने बताया कि नायब सदर कोयम्बतूर, तिरुपुर, मदुराई और रामनाथपुरम में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नायब सदर फिलहाल सेशनल्स के सरकारी दौरे पर हैं जहां उन्होंने सेशल्स के सदर की हैसियत से डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। सूरज की पूजा और अवामी अकीदत का अजीम त्यौहार छठ पूजा अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी समेत कई रहनुमाओं ने तमाम व्रत रखने वालों और शहरियों को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छठ पूजा की मुबारकबाद देते हुए पोस्ट में लिखा, फितरत की अहमियत और अकीदत को वक्फ ईमान, लगन, अकीदा, नए जन्म और तवानाई के इक़दार पर जोर देने वाले और क़ुव्वत के सरचश्मा सूर्य देव की इबादत के इस अजीम त्यौहार छठ के मौके पर सबको दिली मुबारकबाद। आवारा कुत्तों के मामले में सख्त रुख इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को आड़े हाथ लिया। दरअसल इस मामले में कुछ रियासती हुकूमतों की जानिब से हलफनामा दाखिल न करने पर अदालत उज़्मा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सूरत हाल में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को 3 नवंबर को तलब कर लिया है। इस दौरान मगरबी बंगाल और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरियों को अदालत में हाजिर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि दोनों रियासतें पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी हैं। अगस्त में अदालत ने समाअत का दायरा मुल्कगीर करते हुए रियासतों और मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नज़बंदी और वैक्सीनेशन करने और उन्हें उनके इलाकों में वापस छोड़ने का भी हुक्म दिया था। अदालत ने कहा है कि अगस्त के हुक्म के बाद से मुल्क भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अदालत ने कहा है कि बच्चों पर हमलों के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। अभी पिछले महीने ही महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक बच्चे पर कुत्ते के हमले का मामला सामने आया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सैलाब मुतासरा कुंबों को नुकसान की तखमीने की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये मुआवजा किसी और के लिए नहीं, किसी इलाकाई बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला ने यह ऐलान असेंबली सेशन के दौरान पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरा कुंबों को नुकसान की तखमीने की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा, ना कि किसी इलाकाई बुनियाद पर दिया जाएगा। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी के साथ सरहद पर एक ऑपरेशनल ट्रैफिक हादसे में 12 फौजी जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत खराब है और दीगर 10 को मामूली चोटें आई हैं। इसराइली फौज ने एक बयान में वजाहत की कि यह हादसा 2 फौजी हमियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। हादसे में किसी झड़प या सिक्योरिटी के पस मंजर की निशानदेही नहीं की गई। बयान में कहा गया है कि जख्मी फौजियों को इलाज के लिए अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और उनके अहल खाना को पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के दरमियान रूस ने लामहदूद रेंज और कई माह तक फिजा में रहने की सलाहियत के हामिल जौहरी मिसाइल का तजुर्बा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक इस वक्त मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर तक 15 घंटे तक परवाज की। इस दौरान बोरेवेस्टोंग नामी ये गैर मर्ई मिसाइल, यानी जिसे आंख से देखना ना जा सके ऐसा मिसाइल जो दुनिया से मुकम्मल तौर पर पोशीदा रहा। पुतिन ने रूसी यूक्रेन के जंगी मैदान का दौरा किया और फील्ड कमांडरों से मुलाकात की। फौजियों से खिताब करते हुए पुतिन ने बोरेवेस्टोंग क्रूज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बारे में मालूमात शेयर की। पुतिन ने बताया कि रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने इतला दी कि मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और दुनिया के तमाम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा किया। दुनिया का कोई भी दिफाई निज़ाम इसका पता लगाने में नाकाम रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।